Yes, sir. Okay. So, good morning. We will be seeing today one or two problems related with the mux. Already, this problem I have taken yesterday in the lab for the students, those who have come here for to the college for doing their practicals. So, we have done one practical which is based upon mux. We will write down the problem, the same problem, and we will solve this problem. Now, today I'll be talking about this problem, and I will be explaining you the three different methods to solve this. Okay, actually, this is a designing problem by using mux, and how to solve this problem because mostly the problems are asked on the designing uh, as far as the mux is concerned. So we have to understand how the designing has to be done. Okay, and I will be giving you three solutions, and you have to see how this designing is done. And the best design is the design in which there are minimum hardware, so we have to finalize the final design in which you will see minimum design. So we will solve the same problem by using three different designs, and we will cross verify whether it is justifying the solution, the given with the given problem, and accordingly we will see whether the hardware requirement for the three different solutions are less or not, and which one is the best one. Okay. So for that, please write down the problem. Then we will solve this. The problem is, I will take the same problem which I have taken yesterday. तो कल लोग जो प्रेजेंट थे कॉलेज में आए थे फॉर देम ऑल्सो, अगर बिकॉज 2 or 3 स्टूडेंट्स केम टू मी कि सर फिर से एक्सप्लेन करो. So for them also, please pay attention and see how this problem is solved. So write down the problem. Am I audible to everyone properly? Yes, sir. Okay. So I'm writing down the problem. Write down function f in bracket. You can write down a comma b comma c comma d equals to function of variable a b c d is given as summation m. This is small m, not capital M. Small m stands for minterms, and the minterms are 2, 4, 6, 7. I'm taking purposely the bigger problems, the problem, not the simple one, so that अगर ये proper समझ में आए तो you will be able to solve any problem. So it is 2, 4, 6, 7, then 10, then 11, 12, 13, and 15. 13 and 15. So function of ABCD is given as summation M 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15. Full stop. Realize this function or this logic function. Realize this logic function. Realize this logic function by using 8 raised to 1 mux. 8 raised to 1 mux. 8 raised to 1 mux. So this is the problem which is given. 8 raised to 1 mux. Realize this logic function by using 8 raised to 1 mux. Realize this logic function by using 8 raised to 1 mux. So try to understand the problem. उन्होंने क्या दिया, एक function दिया है in the variable of ABCD, and the min terms are 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, and 15, and they want us to realize this logic function by using 8 raised to 1 mux. तो 8 raised to 1 mux यूज करके हमको ये फंक्शन को रियलाइज करना है. ओके, या फिर ये फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है by using 8 raised to 1 mux. Okay, so we will solve by three solutions. Pay attention. First we will go with the easiest solution and see the easiest solution. Now before we start with this, try to understand the function is given in the form of ABCD. So there are 4 variables. Okay, now as far as your 8 raised to 1 mux is concerned, I'm drawing the rough diagram of 8 raised to 1 mux.
So as far as address to 1 mux is concerned, you have input lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can name them as D0 to D7 or I0 to I7, जैसे आपको चाहिए. Okay, so these are the 8 input lines. To select any one of them, you have select lines. So if there are 8 input lines, you will require 3 select lines. You can name this as ABC, or you can name this as S0, S1, S2, and you have one output line, that is Y. You have one output line, that is Y. Okay, you have one output line, that is Y. Now this is a scenario. ये 8 to 1 mux ही हमको use करना है और वो function को realize करना है. And this is a the 8 to 1 mux. हमने कल प्रैक्टिकल में देखा है कि वी आर यूजिंग द आईसी विच इज 8 to 1 mux. आई थिंक दैट आईसी इज 74LS151. ये आईसी का नाम है, ये आईसी का नाम है. सो आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हैं 74LS151 चाहिए मुझे आईसी, द पर्सन विल गिव यू 8 to 1 mux. ओके, और उसका स्पेसिफिकेशन होता है दिस इज अ 16 पिन आईसी, दिस इज अ 16 पिन आईसी. ओके, तो पिन कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में देखेंगे. ओके, मैंने कल प्रैक्टिकल में लिया है पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड वी हैव परफॉर्म द प्रैक्टिकल आल्सो. So this is not part of your solution, but at least understand that 74LS151 is the IC which is used as an address to 1 mux. Okay, so this is a scenario. Now, when we have to implement this problem, we have to identify what? We have to identify at this respective minterms, that is 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 15. There should be the output, and we should give you 1. That output should give you 1. Okay, so 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, at the respective outputs, your the output should be high. The output should be high. Now here, when you talk about this 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 15, we have to implement this in 8 to 1 mux. We have to implement this in 8 to 1 mux. अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि how many mux we require, but we have understood that actually to implement this total number of minterms, we require 2 8 to 1 mux. अब हमने यहाँ पे देखा है कि the last highest number is 15. So you have understood that you can directly implement 16 to 1 mux, क्योंकि 16 to 1 mux में आपके पास 16 input lines है, लेकिन ये है 8 to 1 mux हमको यूज करना है. तो वी कैन नॉट गो विथ 16, हमको 8 to 1 ही हमको यूज करना है. सो व्हाट आई कैन डू, 8 इनपुट लाइंस, 8 एक 8 to 1 mux से हम यूज करेंगे और दूसरे 8 इनपुट लाइंस हम दूसरे 8 to 1 mux से यूज करेंगे. ओके, सो हाउ इट वुड बी, नाउ यू विल हैव 2 8 to 1 mux. ओके, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so these are the 2 8 to 1 mux. These are the 2 8 to 1 mux. So this is Y0 and this is Y1. Now this one I will say as I0 to I7, and this one is I8 to I15. I8 to I15. I8 to I15. अब इन्होंने जो प्रॉब्लम में दिया है वो हिसाब से हमको वो जो 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 है, उस पर्टिकुलर इनपुट को हमको हाई देना है, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से ये पर्टिकुलर मिनटर्म्स पे आउटपुट शुड बी हाई, और ये जो मिनटर्म्स यहाँ पे मेंशन नहीं है वहाँ पे आउटपुट आएगा 0, ओके, सो हाउ डू यू सॉल्व दिस, दैट we will see that 2, 4, 6, 7. So from here I will take, it is 0, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और लास्ट में I7 है. यहाँ पे I9, I10, 11, then you have 12, then you have 13, 14 and 15. So out of this I will take 2. So I am taking 2 from here. I will take 4 from here. I will take 6 from here. I will take 7 from here.
I will take 10 from here. I will take 11 from here, 12 from here, and 13 from here, and last 15 from here. So all this will be tied together. All this will be tied together, and it will be given to plus VCC. And it will be given to the plus VCC. Okay. So you know that at respective input, when it is you will be tied together and you will be giving high. So whenever you are selecting 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, by using the select lines, the output will be high at these respective inputs. So how do you select them? So for selection of this, you will have here select lines, 3 select lines. Here will be 3 select lines. So they have given in the problem A, B, C, D as the function. So I can use that A, B, C, D as a function here. So here A, B, and C. So these are the 3 select lines. Now I can use the last variable D for enabling and disabling. Okay. तो यहाँ से मैं एक EN का जो पिन है, you know this EN पिन, और यहाँ से जो एक EN का पिन है, तो ये दोनों EN पिन I will take. The both EN pin I will take. Okay. और फिर मैं क्या करूंगा? I will be using D as the variable. एक फिर मैं एक NOT gate लगाऊंगा. Then this EN pin will go here and the output of NOT gate will come here. This is how I will do it. Okay. इसका मतलब क्या है? What provision I have done? That at a time both marks, दोनों marks में से एक ही marks use होगा. Okay. अब ये प्रोविजन मैंने क्यों किया है? ऑल ऑफ यू सी हियर. इफ आई एम राइटिंग डाउन हियर ए बी सी एंड डी, या फिर हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं. सबको मेरी आवाज आ रही? Yes. हाँ. इफ आई एम राइटिंग डाउन हियर ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी, सो you will go from here 0 0 0 0, then 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0. Okay. And so forth, dot लास्ट में 1 1 1 1. अभी यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं I'm not able to write down all the possibilities, all the combinations. Okay. अब यहाँ पे मुझे एक बात आपको बताना है. अगर मैंने एक ऐसा किया, ये ABCD दिख रहा है ऊपर का, this one. So what I will do, instead of writing ABCD, I will say here A, this is B, this is C, and this is D. Okay. Now see here, ये दो अलग अलग सेक्शन बनाते हैं हम, और हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करते. And if you see carefully, for 8 possible combinations, D is 0, and for the remaining 8 combinations, D is 1. So this funda I can use. This thing I can use. This logic I can use. तो अगर मैं ये लॉजिक यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉट गेट की भी जरूरत नहीं गिरेंगी, ये नॉट गेट की भी जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम अनेबल पिन को डी के साथ लगा सकते हैं. ये वाला ऐसा हम डायरेक्टली डी को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डी जीरो है, ओके, देन सी ये जो मैंने 8⁻1 मक्स बनाया, दिस इज EN बार. EN बार का मतलब होता है एक्टिव हाई. अगर EN बार को 0 इनपुट दूंगा मैं, तभी वो एक्टिव रहेगा. 1 दूंगा तो एक्टिव नहीं रहेगा. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज 8⁻1 मक्स जो मैंने बताया था 74LS151, ये जो IC है उसमें जो EN बार की जो पिन है दैट इज एक्टिव लो. तो हम जब 0 देंगे तभी वो एक्टिव होगा. सो यहाँ पे भी EN बार का मतलब होता है एक्टिव लो, और सिर्फ EN है तो एक्टिव हाई होता है. तो EN बार both ICs are having EN bar. So whenever D is equals to 0, अगर D is equals to 0 अगर मैं दे रहा हूँ, so in that case both the ICs will be on.
both the ICs will be on. Okay, both the ICs will be on. लेकिन both the ICs मुझे on नहीं चाहिए. So that's why I can do one thing. I can have introduce one NOT gate. I can introduce NOT gate. अगर NOT gate नहीं चाहिए तो ऊपर वाला IC EN बार enable होना चाहिए और नीचे वाला EN ही होना चाहिए. Then without NOT you can do. लेकिन अगर मैंने दोनों IC यूज कर रहा हूँ 74LS151, and in that case both the EN bar are both the pins are having EN bar, so I cannot use without the NOT gate. I should use NOT gate. I should use NOT gate. I should use NOT gate. Okay, तो NOT gate का एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा. ओके, तो अगर D 0 है तो ऊपर वाला अनेबल रहेगा, ऊपर वाला अनेबल रहेगा और नीचे वाला डिसेबल रहेगा, नीचे वाला डिसेबल रहेगा. और जब D मेरा 1 है, नीचे वाला ये जो कॉम्बिनेशन से D मेरा जब 1 है तब ऊपर वाला डिसेबल रहेगा और नीचे वाला मक्स अनेबल रहेगा. So that logic I can use. That logic I can use. And what about ABC? Can you see here ABC 0000001? यहाँ पे भी वही है 000001. यहाँ पे 010, यहाँ पे भी 010, यहाँ पे 011, यहाँ पे भी 011, लास्ट में 111, यहाँ पे भी लास्ट में 111. So I can use them for selection of the input, So if you अगर आप प्रॉपरली ये डिजाइन देखोगे तो आपको समझ में आएगा. As per this truth table, okay, your output will be high for 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 15. And for the other combinations, your output of the mux will give you 0. तो ये आउटपुट जो है हम ये डायरेक्टली हम OR गेट को भी लगा सकते हो. अगर आपको एक ही आउटपुट चाहिए होगा तो यू कैन कनेक्ट विद द OR गेट एंड यू विल हैव द फाइनल आउटपुट एज कैपिटल Y. सो दैट थिंग आल्सो यू कैन डू. ओके, सो दिस इज द सिंपल डिजाइन. हाँ, लेकिन ये डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ है. आपने 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 को कंबाइन करके उसको VCC दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग पिन्स है उनका क्या करना है? वो सभी को जमा करके और उस सभी को टाई करके यू हैव टू गिव टू द ग्राउंड, क्योंकि वो मिन टर्म्स पे आपको आउटपुट में 0 चाहिए. तो बाकी के जो भी बचे हैं, यहाँ पे बचा है 0, 1, 3, 5, देन यहाँ पे क्या बचा है 8, 9, then 10, 11, 12, 13, then 14. So all these remaining pins will be tied together and will be grounded. अब ये आपका जो डिजाइन बन गया, ये डिजाइन आपको अभी प्रॉपर आउटपुट देगा as per the given problem. So do you have any questions related with this design? This is the first design. Do you have any question? Am I audible? Yes, sir. किसी को डाउट है डिजाइन में, प्लीज मुझे बताओ, or else we will go to the next solution, the next design. It is clear? Yes, sir, clear. Okay, so we will go to the next design. This is your design number 1. We will go to the next design. All of you pay attention now to the next design. In the next design, it is purely based upon your table. Okay, so you have ABCD as the 4 variables. So using that 4 variables, see what I'm going to write down now. Okay, so 4 variables are, so I'm writing down here variables, and you will write down here output as Y, and equivalent decimal number. Okay, so with this we will be writing down the table. Okay, so variables are A, B, C and D. Okay, and the output Y. Okay, so decimal number, variables and output Y. So this is your output, which is Y. So it is strictly given that we have to use 8 raised to 1 mux. We have to use 8 raised to 1 mux. So pay attention. अब क्या करना है?
So we have 4 variables. So complete all the combinations. So starting from 0, 0. So it is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, then 1, 0, 0, 0, then 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, sorry, yes, it is 0 and 1, 1. Then 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, लास्ट में है 1, 1, जस्ट अ मिनट, 1, 1, 1, 1. Okay, so these are the all combinations. These are the all combinations. Okay, now here decimal numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, this is 13, 14, and last one is 15. Now as per the given problem, you want the output should be high at the respective minterms. So for decimal number 2, the output should be high, 1. At decimal number 4, the output should be high, 4 में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. Then 6, 1, 7, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, and 15, 1. So this is as per the given problem. Everywhere 1 as per the given problem, the min terms, and rest of the terms you will have 0. You will have 0. So here 0, 0. Then here also 0. Okay. Then 1, 0. Then 1, 1. Then 0 and 0. Then second last 0. Yes. So as per the given problem, मैंने मिन टर्म्स की जगह पे जहाँ पे मिन टर्म्स दिया वहाँ पे आउटपुट हाई रखा है, और जहाँ पे मिन टर्म्स नहीं दिया है वहाँ पे आउटपुट 0 रखा है. ओके, अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू मेक द ग्रुप्स ऑफ 2 2. वी हैव टू मेक द ग्रुप्स ऑफ 2 2. तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स बनाता हूँ. व्हाट आई विल डू, ओके, ऐसा मैं बनाता हूँ. I'm making the groups of 2 2. I'm making the groups of 2 2. Okay, now I want everyone to pay attention now. I'm audible? मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है? हाँ, ठीक है. अभी ये मैंने 2 2 के ग्रुप बनाए. आपको पता है ABC और D वेरिएबल्स दिए हैं. आपको यूज करना है मक्स 8 मक्स. आपको यूज करना है 8 मक्स. ओके, तो आपके जो 3 सिलेक्ट लाइन्स है, दैट विल बी यूज फॉर ABC, and D we have to use, and this D will be separately used as a control line. So this D is used as a control line. So this D is used as a control line. तो वो एक बाइफर्केशन में आपको बना देता हूँ यहाँ पे. So D is used as a control line. तो D को मैंने सेपरेट रखा है. D को मैंने सेपरेट रखा है. ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉपरली नाउ, अभी मैं क्या करने वाला है वो देखो. अब मैं क्या करने वाला है वो देखो. ABC is used as a select lines. D is separately used as a control line. How that D is used as a control line? See here now. When this D, all of you pay attention. When this D is 0,
the output is 0. When this D is 1, the output is 0. Can I say D कुछ भी रहने दो, output में 0 आता है, तो I will just generalize this as Y is equals to 0. Next, when D is equals to 0, Y is equals to 1. When D is equals to 1, Y is equals to 0. इसका मतलब है D का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बाहर, D का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है आउटपुट में. I can write down here in general as Y is equals to D bar. As Y is equals to D bar. Next, when D is equals to 0, Y is equals to 1. When D is equals to 1, output is 0. So here, if you see carefully, here also we are getting complement. For this, I will make generalize as Y is equals to D bar. I will make Y is equals to D bar. I will make Y is equals to D bar. Here, when D is equals to 0, output is 1. When D is equals to 1, output is 1. It means your output is always 1 irrespective of D. Irrespective of D. So I can generalize here as Y is equals to 1. So for here, D is equals to 0. When D is equals to 0, output is 0. When D is equals to 1, output is also 0. That means your output is always 0 irrespective of D. Similarly, here your output is 1 with irrespective of D. Here also your output is 1 irrespective of D. Here, if you see carefully, when D is equals to 0, output is also 0. When D is equals to 1, output is also 1. That means D आपका वही के वही बाहर आ रहा है. So Y is equals to D. So Y is equals to D. So Y is equals to D. So here we have summarized something. We have summarized something. Okay. अभी यहाँ पे हम जब ये summarize कर रहे हैं, तो here you will be able to understand properly that with respect to this design, I can have the design. I can have a design. तो वो design कैसी रहेंगी? We will see here. Before I go with the design, ये सबको समझ में आया? ये टेबल सबको समझ में आया? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay. So we will see the design now. We will see the design now. We will see the design. Now when we see this design, अभी ये जो मैंने आपको अभी ये बना के दिया है in general one. With this we are going to make a design of 8 raised to 1 mux. और वो डिजाइन कैसे रहेगा? See here, all of you. You will have only one 8 raised to 1 mux. Now you will be here in the confusion state. Sir, एक ही 8 raised to 1 mux use करना है. So we will see how. So हम जब 8 raised to 1 mux use करते हैं, तो you have one output. You will have one output. You will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is suppose this is your I0 to I1. So here I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. You have 3 select lines. So it is A, B, C. So 3 variables मैंने जो बताया था आपको, select lines will be they will be used as a select lines. Okay. And there is one enable pin, that is EN bar. That is EN bar. तो इसको मेरे को हमेशा 0 ground करना है. तो here always I will give 0. 0 voltage. 0 voltage. 0 voltage. Okay. 0 voltage. Now see here. We will talk about the first input line, that is I0. As per the given problem, we do not have we don't want that I0, because at I0 the output is 0. Okay. अगर हम यहाँ पे देखेंगे for 0, I0, the output is 0. The output is 0. Can you see it? The output is 0. Okay, the output is 0. So with respect to this, you have to see carefully now. I want you to have a keen observation. All of you see here now. Whenever you talk decimal 0, please pay attention. This is very important. जरा सा भी मेरा wording आपने मिस कर दिया या फिर ये ऑब्जर्वेशन मिस कर दिया तो नहीं समझ में आएगा.
whenever you talk about decimal 0, whenever you talk about the decimal 0, that input line I0 will be selected when you have ABC select line as 0. Can you see here, your ABC is 0 in this section. Your ABC is 0 in the section. Your ABC is 0 in the section. So for your decimal number 0, that is I0, your ABC selection will be 0, 0, 0. So for these both the cases, your ABC is 0, 0, 0. Okay. तो मैं एक काम कर सकता हूँ, so here what I will do, as per this decimal number 0 and 1, 0 and 1, yes, 0 and 1 आप बोलो या फिर क्या बोलो, डू नॉट से 0 and 1, ये ऐसा मत बोलो, आप क्या बोलो, for the ABC selection, for this AB selection, when ABC is 0, 0, 0, that means your I0 will be selected. मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, when your ABC is 0, 0, 0, 0, 0, 0, your I0 will be selected because it is addressed to 1 mux, your address to 1 mux. So in this case your output will be 0. ये देखो output will be 0, your output will be 0. So your I0 will be selected, your I0 will be selected, your I0 will be selected. Okay, so output y is equals to 0 is there. किसी को कुछ बोलना है? Okay, so your output is 0. So as per this y is equals to 0, it means your I0 should be tied to logic 0. Your I0 should be tied to logic 0. तो ये आपका 0 है, वहां पे आपका I0 टाइड होना चाहिए. इसका मतलब जब आपका A, B और C 0, 0, 0 होते हैं, आपका I0 सिलेक्ट रहेगा, जो आपने डायरेक्टली 0 को कनेक्ट किया है. मैंने 0 को इसलिए कहा बिकॉज योर y is equals to 0. योर y is equals to 0, तो आपको डायरेक्टली वो 0 वोल्टेज को कनेक्ट करना है, आपको डायरेक्टली वो 0 वोल्टेज को कनेक्ट करना है. ओके, सो एक I0 का हो गया. नाउ व्हाट अबाउट I1, व्हाट अबाउट I1, what about I1? Now see here, what about I1? Now whenever you, now what about I1? Now I1 के लिए देखो, when your ABC is 0, 0, 1, can you see here ABC is 0, 0, 1? Can you see here ABC is 0, 0, 1? So whenever ABC is 0, 0, 1, whenever your ABC is 0, 0, 1, your I0 will be selected. Your I1 will be selected. Your I1 will be selected, and your I1 will be selected. And can you see here y is equals to d bar? Can you see here y is equals to d bar? अब y is equals to d bar का मतलब क्या है? See here, आपका ये I1 है, आपका I1 है, ये I1 को you have connected with the NOT, you have connected with the NOT, और ये NOT का जो इनपुट है that is D, आउटपुट जो D है. अभी देखो मेरा A यहाँ पे है, मेरा B यहाँ पे, मेरा C यहाँ पे, मेरा देखो D यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड एज ए कंट्रोल लाइन. मेरा D यहाँ पे, तो D मेरा अगर 1 है, अभी वो जस्टिफाई कैसे करना है ये देखो यहाँ पे. अगर D मेरा 0 है, ये D मेरा अगर 0 है तो आउटपुट में मेरा 1 जाएगा, और D मेरा अगर 1 है तो आउटपुट में 0 जाएगा. इसलिए मैंने y इक्वल्स टू d बार किया है. तो इसलिए y इक्वल्स टू d बार मीन्स ये आपका D है, आउटपुट में ये आपका D बार जाएगा, और ये D बार ही आपके आउटपुट में आ जाएगा, ये D बार ही आपके आउटपुट में आएगा. सो दिस इज फॉर I1. व्हाट अबाउट I2 नाउ? व्हाट अबाउट I2? I2 कब आएगा? जब आपका ABC 0, 1, 0 रहेगा, जब आपका ABC 0, 1, 0 रहेगा. तो आपका जब ABC 0, 1, 0 है, 0, 1, 0, that means your I2 will be selected. ये देखो आपका I2 will be selected, your I2 will be selected. Now I2 के लिए देखो क्या है, y is equals to d bar, y is equals to d bar, y is equals to d bar. So same thing we can use here. I is what we can do, ये और ये दोनों मिलके हाँ ऐसा जाएगा, बिकॉज I1 के लिए भी d बार और I2 के लिए भी d बार. तो I1 हो गया, I2 हो गया, I0 हो गया. अभी I3 के बारे में देखो क्या.
I3 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ABC 0111 011 011 रहेगा तो आपका I3 सिलेक्ट होगा। I3 सिलेक्ट के लिए जब सिलेक्ट होगा तो आउटपुट में आपका 1 आना चाहिए। देखो आपका आउटपुट में 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो I3 है वो हमको डायरेक्टली 1 को लगाना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, अलग से ये ऐसा निकाल देता हूँ और डायरेक्टली इसको मैं लॉजिक 1 देता हूँ। लॉजिक 1, यहाँ पे लॉजिक 0 दिया है, यहाँ पे लॉजिक 1 दिया है। इसका मतलब ये आप इसको ग्राउंड समझो और इसको आपको आप प्लस VCC समझो, नो प्रॉब्लम, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो I3 को आपको डायरेक्टली 1 को कनेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? I0 हो गया, I2 हो गया, I3 भी आपका हो गया। अभी I4 के बारे में क्या है? I4 का स्टेटस क्या है? सी यार, I4 का स्टेटस आपका I4 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ABC सिलेक्ट लाइन्स 100 रहेगा। ये देखो 100 तो आपका जब ABC 100 होता है तो आउटपुट में आपका 0 आना चाहिए। आउटपुट में आपका 0 आना चाहिए। तो आपको पता है, अब क्या पता है आपको? I4 को डायरेक्टली 0 से लगा दो। I4 को I4, ये देखो आपका I4, ये डायरेक्टली ये ऐसा लगा दो, खत्म। I4 को डायरेक्टली लॉजिक 0 को लगा दो। I4 का भी हो गया। I5 के बारे में क्या है? I5 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ABC 101 होगा। तो ABC 101 है तो 101 में आपका y इज इक्वल्स टू 1 है। तो I5 का भी यही स्टेटस है और I6 का भी वही स्टेटस है, दोनों 1 1 ही है। ये देखो, ये 1 और ये 1। तो I5 और I6 ये भी डायरेक्टली किसको कनेक्ट हो जाएंगे? I5 और I6 वो भी डायरेक्टली 1 को कनेक्ट होंगे। तो आपका ये देखो, I5 डायरेक्टली 1 को, I6 डायरेक्टली 1 को। लास्ट वाला बचा है I7। I7 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ABC 111 होगा। और 111 देखो यहाँ पे आउटपुट में आपका D आना चाहिए। आप आउटपुट में आपका D आना चाहिए। तो आपको पता है क्या करना है? आपको पता है क्या करना है? ये I7 डायरेक्टली D को लगा दो, डायरेक्टली D को लगा दो, खत्म। दिस इज योर डिजाइन, सो योर डिजाइन इज रेडी। अगर आपको ये डिजाइन क्रॉस चेक करना है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको ये टेबल ही रेफर करना है। ओके, इज इट क्लियर? ये आपको ये टेबल ही आपको रेफर करना है। सो दिस इज हाउ यूजिंग 8⁻1 marks you are going to solve that function FABCD। अभी ABC मैंने यहाँ पे यूज किया है और D मैंने यहाँ पे यूज किया। So this is giving to justify your the solution to that problem. Any question related with this design? सर एक बार ट्रूथ टेबल समझा दो ना। हाँ, मैं ट्रूथ टेबल फिर से समझाता हूँ। हाँ ठीक है। अब ये ट्रूथ टेबल में क्या है? हमने 3 कॉलम बनाए। एक है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहाँ से है? ये आपके जो बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। दूसरा कॉलम आपके वेरिएबल्स है और तीसरा वाला कॉलम आपका आउटपुट का है। अभी ये जो वेरिएबल्स है इसको मैंने 2 सेक्शन में किया। ABC वेरिएबल मेरे सिलेक्ट लाइन जैसे काम करने वाले हैं। D का मुझे कुछ तो भी यूज करना है। अब D का मेरा प्रीवियस डिजाइन में मैंने कैसे यूज किया? देखो ये D का मैंने कैसे यूज किया, ये D का मैंने ऐसे यूज किया। एक भी वेरिएबल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वैकेंट नहीं होना चाहिए। एवरी वेरिएबल यू हैव टू यूज फॉर सम अदर पर्पस। यहाँ पे मैंने D का देखो कैसे यूज किया। ये लॉजिक क्या था? क्योंकि मेरा 8 बार D 0 था और 8 बार मेरा D 1 था। तो ये ऊपर का जो सेक्शन है ये मैं यूज कर रहा था ऊपर वाले मस्क के लिए, और नीचे वाला ये सेक्शन था ये मैं यूज कर रहा था नीचे वाले मस्क के लिए। तो वो मेरे दिमाग में रख के मैंने ये डिजाइन बनाई। अब ये नेक्स्ट वाला जो डिजाइन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी वही है कि मैं D मुझे सब आई हैव टू यूज सम फॉर अदर पर्पस। यहाँ पे उसका पर्पस क्या है? देखो अभी यहाँ पे मैंने D को बाइफर्केट किया तो ABC विल बी यूज एज अ सिलेक्ट लाइंस, D विल बी यूज एज अ कंट्रोल लाइंस। अब मैंने D का कैसे यूज किया है? ये जो आउटपुट मेरा Y है दैट इज आई एम गोइंग टू जनरलाइज। वो जनरलाइज क्यों किया मैंने? कि ये देखो ये सेक्शन में आपका ABC 000, ये सेक्शन में आपका ABC 001, ये सेक्शन में आपका ABC 010। सो कैन आई से फॉर दिस सेक्शन इट इज 0,
For this section it is 1, for this section it is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो ये जो मेरे 16 मार्क्स यूज करने का जो था वो मैंने रिड्यूस करके 8 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया. 8 मार्क्स कैसे, ये देखो, ये 0, 1, 2, 5, 6, 7, ये लॉजिक मैंने यूज किया. अब डी का मुझे कैसे यूज करना है, डी का मुझे कैसे यूज करना है, अभी जनरलाइज किया मैंने. ये ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये ऊपर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मैंने देखा कि जब डी मेरा 0 है तो आउटपुट मेरा 0 है, डी मेरा 1 है तो आउटपुट मेरा 0 है. सर यानी डी हमने मेरा आउटपुट कैसे देखा, मतलब आउटपुट कैसे आया? आउटपुट कैसे है, ये देखो, ये मैंने पहले इसको आउटपुट बना के रखा. ये देखो 0, 0, 1, 0, ये आउटपुट मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम में दिया था. प्रॉब्लम में मुझे क्या दिया था, समेशन m 2 4. ये देखो 2 में 1 लिखा, 4 में 1 लिखा, देन 6 में 1 लिखा, 7 में 1 लिखा, बाद में 10 में 1 लिखा, 11 में 1 लिखा, 12 में 1 लिखा, 13 में 1 लिखा और 15 में 1 लिखा. ये मैंने खुद 1 नहीं लिखा, प्रॉब्लम में दिया है, प्रॉब्लम में दिया है. और बाकी की जगह पे मैंने 0 0 किया. अंडरस्टूड? यस सर. हाँ, और बाकी की जगह पे मैंने 0 0 किया. अब मैंने देखा है कि डी जब क्या है तो आउटपुट क्या है. तो ये केस में मुझे पता चला है कि डी कुछ भी रहने दो, आउटपुट में 0 आना है तो y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मुझे समझ में आया कि आउटपुट में डी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. यहाँ पे मुझे समझ में आया कि आउटपुट में डी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. यहाँ पे मुझे समझ में आया कि आउटपुट में 1 ही आ रहा है, डी कुछ भी रहने दो. यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आउटपुट में 0 आ रहा है, डी कुछ भी रहने दो. यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही. यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आउटपुट में वही आ रहा है, जो डी में है वही आउटपुट में आ रहा है. अब यहाँ से मुझे, अगर मैं आपको एक समझाता हूँ, आई विल टेक रैंडमली एनी वन. सपोज मैं ये ले रहा हूँ, विच वन, हाँ सपोज मैं ये ले रहा हूँ, दिस वन. अभी यहाँ पे क्या है, 1 0 1. 1 0 1 बोले तो आपका सिलेक्ट लाइन्स किसको सिलेक्ट करेगा, 5 को, I5. ओके, आपके आउटपुट में I5 में सिलेक्ट करूंगा तो आउटपुट में आपके 1 आना चाहिए, आपका आउटपुट में 1 आना चाहिए. तो आपने वो हिसाब से डिजाइन क्या बना है कि आपका I5 डायरेक्टली आपने VCC को लगा दिया, आप डायरेक्टली आपका VCC को लगा दिया. अगर मैं लास्ट वाला ये लेता हूँ, ये 1 1 1 1 1 1 बोले तो मेरा सिलेक्ट लाइन जब 1 1 1 रहेगा तो मेरा कौन सा डेटा लाइन सिलेक्ट होगा, I7 सिलेक्ट होगा और आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में क्या देना चाहिए, डी देना चाहिए. इसका मतलब जो डी है वही आउटपुट में आना चाहिए, जो डी है वही आउटपुट में आना चाहिए. तो ये देखो आपके प्रीवियस में क्या है, ये देखो आपका सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये डी अगर आपका 0 है तो आउटपुट में 0 आएगा, अगर डी आपका 1 है आउटपुट में 1 आएगा. ये मुझे टैली करना है, तो कैसे टैली करोगे, ये देखो यहाँ पे डी अगर मेरा 0 है आउटपुट में 0 आया है, डी मेरा 1 है आउटपुट में 1 आया है. अब एक प्रॉब्लम इसका भी ले लो, ये सेक्शन का लेंगे हम. अगर मेरा सिलेक्ट लाइन 0 0 1 है, इसका मतलब मेरा I1 सिलेक्ट होना चाहिए, I1 सिलेक्ट होना चाहिए और आउटपुट में क्या जाना चाहिए, डी बार. आउटपुट में क्या जाना चाहिए, डी बार. अब देखो आउटपुट में डी बार कैसे जाएगा, इसका मतलब क्या, देखो जब मेरा डी 0 है आउटपुट में 1 आना चाहिए, और जब मेरा डी 1 है आउटपुट में मेरा 0 आना चाहिए. अगर टैली करना है तो डिजाइन के पास जाओ. अब डिजाइन देखो क्या बताता है, डिजाइन क्या बताता है आपका ABC. मैं किसके लिए बात कर रहा था, मैं 0 0 1 के लिए. यस, 0 0 1 के लिए जब मेरा ABC 0 0 1 है, मेरा I1 सिलेक्ट होना चाहिए, I1 सिलेक्ट होना चाहिए, तो सिलेक्ट हो गया. अभी I1 आउटपुट में क्या आना चाहिए, डी बार ही आना चाहिए ना, ये देखो ना, डी बार ही आना चाहिए. अगर डी 0 है तो आउटपुट में 1, और अगर डी 1 है तो आउटपुट में 0. तो वो देखो कैसा हुआ, अगर मेरा ये अभी देखो डी अगर मेरा 0 है, यानी नॉट गेट लगाया तो यहाँ पे डी बार मेरा 1 आया, और वही 1 देखो I1 में जा रहा है और आउटपुट में वही 1 आ रहा है. तो मैं बोलूं कि डी 0 0 है तो आउटपुट में 1 आया है. यस. और दूसरा देखो, अगर मेरा डी 1 है, इसका मतलब नॉट गेट लगा के वो 1 का हो गया 0, और ये 0 जा रहा है I1 में और आउटपुट में मेरे आ रहा है 0. इसका मतलब जब मैं डी 1 दे रहा हूं तो आउटपुट में मेरा आ रहा है 0, और मैं जब डी 0 दे रहा हूं तो आउटपुट में आ रहा है मेरा 1. यानी ये जो ट्रूथ टेबल है ये फॉलो हो रहा है, ये वाला सेक्शन फॉलो हो रहा है.
अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? Yes, sir. यस। देखो, आई एम वेरी मच श्योर कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर भगाने के लिए मेरा रिकॉर्डिंग देख लेना शाम के टाइम पे, आराम से चाय पीते पीते एंजॉय दिस recording and try to understand, but provided you should sit with your pen and your rough register and do whatever I have done in this truth table, तब वो properly justify आप कर पाओगे। okay, so I hope you have understood this. I will go with the third solution. The third solution, ये देखो, ये सेकंड डिजाइन है, ये हमने जो किया ये मेरा सेकंड डिजाइन है। अभी वी विल गो विद द थर्ड डिजाइन, दैट इज द लास्ट डिजाइन। आज का मेरा यही इंटेंशन था कि आपको मैं तीनों डिजाइन प्रॉपर सिखाऊं, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक, you understand the fundamentals, you understand the truth table and how the designing is done. Designing is nothing but the logic. पहले डिजाइन देखो एकदम अलग था, सेकंड डिजाइन एकदम अलग है, थर्ड वाला जरा सा और अलग रहेगा, बट रिमेंबर ऑल दिस डिजाइन शुड जस्टिफाई द प्रॉब्लम. Cross check the you should cross check with the problem. So we will go with the last design. Are you there with me everyone? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, अभी लास्ट डिजाइन देखो कैसा है, ये भी आपको काफी किताब में देखने को मिलेगा। अभी ये कैसा डिजाइन है, एवरीवन सी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एवरीवन प्लीज सी हियर, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, ये लिख डालो। ओके, अभी as per the given problem ABCD, I can have 16 combinations. I have to implement that 16 combinations by using 8 raised to 1 mux. By using 8 raised to 1 mux, I do not have the provision to use 16 raised to 1 mux. तो 8 raised to 1 mux में मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे मेरा इसके पहले वाला जो डिजाइन था, एक ही मैंने 8 raised to 1 mux यूज किया था, अभी वही फंडामेंटल भी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे एक ही 8 raised to 1 mux करूंगा, लेकिन उसके लिए डिजाइन देखो क्या है। मैंने I0 to I7 किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जो मेरा कंट्रोल लाइन है वो D वाला, एक बार में D बार रख रहा हूँ और दूसरे बार में D रख रहा हूँ, एक बार में D बार रख रहा हूँ, दूसरे बार D रख रहा हूँ। एज पर द गिवन प्रॉब्लम, आपको पता है आपका मैक्सिमम मिनटर्म 15 वाला है, इसका मतलब आपका टोटल कॉम्बिनेशन 0 से लेके 15 तक है। तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। वो लिखने का तरीका देखो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपको ऐसे लिखना है। आपके बिन टर्म्स पूरे लिखने हैं। अब क्या करना है, नीचे में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो ऊपर में मेरे इनपुट वेरिएबल्स इनपुट डेटा लाइन से, लेफ्ट साइड में मेरे डेटा कंट्रोल लाइन का मैंने दोनों कॉम्बिनेशन लिया, डी बार और डी, और बीच में मैंने लिखा है ऑल द मिन टर्म्स, ऑल द मिन टर्म्स। अब क्या करना है, एज पर द गिवन प्रॉब्लम आपको जो जो मिन टर्म्स चाहिए उसको सर्कल करना है। मुझे 2 चाहिए, सर्कल करो। मुझे 4 चाहिए, सर्कल करो। मुझे 6 चाहिए, सर्कल करो। 7 चाहिए, सर्कल करो। 10 चाहिए, सर्कल करो। 11 चाहिए, सर्कल करो। 12 सर्कल, 13 सर्कल, 15 सर्कल। ये मैंने खुद से सर्कल नहीं किया, प्रॉब्लम में दिया है। मैंने खुद से नहीं किया, ये प्रॉब्लम में दिया। नाउ एज पर द प्रॉब्लम आई हैव डन द सर्कल। अब क्या करना है, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, सबने ध्यान देना है। I will go now column by column. I will go by column by column. So first go with I0. First go with I0. Now in here 0 and 8 दोनों ही जगह पे सर्कल नहीं है, तो जहां पे दोनों ही जगह पे सर्कल नहीं है वहां पे डायरेक्टली 0 लिखना है। जहां पे दोनों जगह पे सर्कल नहीं है वहां पे डायरेक्टली 0 लिखना है, तो यहाँ पे 0 लिखा। सेकेंड कॉलम पे वही स्टेटस है, दोनों जगह पे सर्कल नहीं है, 0 लिखो। यहाँ पे क्या स्टेटस है, यहाँ पे दोनों जगह पे 0 सर्कल है,
जहां पे दोनों जगह पे सर्कल है वहां पे 1 लिखो। यहाँ पे क्या स्टेटस है, ऊपर सर्कल नहीं है नीचे सर्कल है। इसका मतलब वो कॉलम में अगर एक भी सर्कल है तो जिस जगह पे सर्कल है उसका रेस्पेक्टिव आपको रो में क्या दिया है वो लिखना है। इसका रेस्पेक्टिव सर्कल में दिया है डी, इसके नीचे डी लिखो। इसका क्या स्टेटस है, दोनों सर्कल है 1 लिखो। इसका क्या स्टेटस है, नीचे में सर्कल है ऊपर में सर्कल नहीं है, 13 इक्विवेलेंट टू डी, तो डी यहाँ पे लिखो। इसका क्या स्टेटस है, ऊपर में सर्कल है उसका इक्विवेलेंट है डी बार, डी बार लिखो। और लास्ट का क्या है, दोनों जगह पे सर्कल है तो वहां पे 1 लिखो। तो ये मेरा एक समरी टाइप कुछ तो भी आ गया। अब इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, सी हियर, डायरेक्टली वी विल गो टू द डिजाइन, directly we can go to the design now, directly we will go to the design. So this is my 8 raised to 1 mux with one output y with 1 2 3 4 5 6 7 8. So I0 I1 से लेके 1 2 3 4 5 6 and 7 मेरे 3 select lines A B C. So this is my A, this is my B and this is my C. So ABC is used to select this input data lines. अभी देखो क्या करना है, अभी देखो क्या करना है। आपका I0 क्या बता रहा है, आपका I0 आपको कनेक्ट करना है डायरेक्टली लॉजिक 0 को। सो आपका I0 डायरेक्टली लॉजिक 0 को लगा दो, या फिर इसको बोलेंगे हम ग्राउंड। I0 डायरेक्टली 0 को लगा दो। नेक्स्ट आपका I1 क्या बता रहा है, आपका इनपुट है डायरेक्टली 0 को लगा दो, तो 0 को लगा दो। तो फिर से आपका I1 भी डायरेक्टली 0 ग्राउंड को लॉजिक 0 को लगा दो। नेक्स्ट I2 क्या बोल रहा है, I2 बोल रहा है आपका इनपुट डायरेक्टली 1 को लगा दो, आपको डायरेक्टली 1 को लगाना है। ओके, तो 1 को आपको लगाना है, तो आपका I2 विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू 1। तो यहाँ पे मैं लॉजिक 1 बताऊंगा। लॉजिक 1 इज नथिंग बट प्लस VCC। ओके, तो 2 को मैंने वहां पे लगा दिया। अभी क्या करना है, I3 कनेक्ट टू डायरेक्टली D, ये इंपॉर्टेंट है। I3 को डायरेक्टली D को लगा दो। आपका I3 लो, ये मैंने I3 ले लिया, उसको डायरेक्टली D को लगा दो, तो ये मैंने डायरेक्टली D को लगा दिया। नेक्स्ट I4 डायरेक्टली कनेक्ट टू 1, I4 directly connect to 1, so I4 directly connect to 1. Then I5 directly connect to D, so I5 directly connect to D, so यहाँ पे डायरेक्टली D को लगा दिया। नेक्स्ट I6 डायरेक्टली कनेक्ट टू D बार। ओके, तो I6 डायरेक्टली कनेक्ट टू D बार, ये आपका I6 लो, ये आपका I6 है, इसको डायरेक्टली कनेक्टेड टू D बार, नॉट गेट लगा दो और ये डायरेक्टली डी। नेक्स्ट I7 बाकी है, डायरेक्टली कनेक्ट टू 1, डायरेक्टली कनेक्ट टू 1, सो डायरेक्टली कनेक्ट टू। आपका डिजाइन खत्म, योर डिजाइन इज रेडी ना, योर डिजाइन इज रेडी। सो ये जो लास्ट वाला डिजाइन है, आई एम लिविंग विथ यू। अगर ये क्रॉस चेक करना है, या अगर आपको क्रॉस चेक करना है, तो वही फिर आपको टेबल बनाना है यही फिर आपको वही टेबल बनाना है। कौन सा टेबल, ABCD का। ओके, ABCD का आपको टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक रैंडमली, आई विल टेक I7 आई विल टेक I7। आपका I7 है, आपका 7 रहे, I7 रहे या फिर I15 रहे, वो दोनों को आपको 1 को ही लगाना है। अगर I6 की मैं बात कर रहा हूं, तो I6 वाला जो है वो आपका D बार को लगना है। मैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट I6 नाउ। I6 का देखो क्या है, I6 का क्या फंडा है। आपका जो I6 है, आपका जो I6 है, ये वाला नाउ एज पर द गिवन प्रॉब्लम, अगर I6 सिलेक्ट होता है तो आउटपुट में आपका जाना चाहिए 1। अगर I6 आपका सिलेक्ट किया तो आउटपुट में जाना चाहिए 1। आपका I6 का देखो स्टेटस क्या है। मैं ट्रूथ टेबल यही यूज करूंगा, आपको लास्ट डिजाइन में भी यही ट्रूथ टेबल यूज करना है, यही टेबल यूज करना है। मेरा I6 क्या है, कहाँ पे
आपका ये देखो I6, देखो I6 सिलेक्ट कब होगा, जब आपका ABC होगा 110 110, जब आपका ABC रहेगा 110 तभी जाके आपका I6 सिलेक्ट होगा। आपका 110 देखो कहाँ पे, ये देखो आपका I110 यहाँ पे, ये देखो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन 110 वाला। ओके, अब 110 में क्या आउटपुट देखो क्या है, यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब डी के हिसाब से क्या हो रहा है, डी के हिसाब से देखो क्या हो रहा है, डी 0 है आउटपुट, डी अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, डी अगर 1 है आउटपुट 1 है। इसका मतलब आउटपुट 1 रहना चाहिए, डी कुछ भी रहने दो। सो y इज इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 1। सो हियर अगर मुझे अभी टैली करना है तो मैं अभी मैं लास्ट डिजाइन के लिए मैं ये नहीं देखूंगा, y इज इक्वल्स टू जनरल मैंने क्या किया, ये नहीं देखना है आपको, ये नहीं देखना है। ये सेकंड लास्ट डिजाइन के लिए था ये वाला, ये अभी मैं लास्ट डिजाइन के लिए मुझे ये नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, ये देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला। तो अभी देखो मैं क्या देख रहा हूं, D0 आउटपुट 1, D1 आउटपुट 1, तो ये मुझे देखना है। ओके, ये मुझे देखना है। तो इफ यू सी केयरफुली your output should be 1, your output should be 1। so for that if you are giving d is equals to 0, if you are giving d is equals to 0, okay, so when you are giving d is equals to 0, whenever you give d is equals to 0, your output will be d का 0, यहाँ पे d bar will be 1, your d bar will be 1 and your output will be 1, your output will be 1, your output will be 1, your output will be 1 when your d is equals to 1, your d is equals to 1। ओके, आपने एबीसी जो सिलेक्ट किया था, एबीसी आपने एबीसी सिलेक्ट किया था 110 सो 1 आपने 11 जब 0 सिलेक्ट किया था तो आपका I6 सिलेक्ट हुआ था, और I6 सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब आपका आउटपुट में 1 आना चाहिए। तो जब मेरा d इज इक्वल्स टू 0 है तो आउटपुट में मेरा जा रहा है 1, और जब मेरा d इज इक्वल्स टू 1 है तो d का हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे d का हो जाएगा 0, and your output will be now what, your output will be what? Can you justify this design? Can you justify this design? When your d is equals to 0, what is the case? And when your d is equals to 1, what is the case? In both the cases, what should be your output? Can you justify any one of you? Yes? D0 रहेगा तो फिर वो I0 to I7 काम करेगा। जब मेरा d 0 रहेगा हाँ तो हम I0 to I7 कंसिडर करेंगे। हाँ, तो मैं आपको वही बताता हूँ। यस, वॉट एवर यूर ABC के बदले में CDA लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मैंने जो लिखा है ना वही ABC रहने दो। अभी मैंने क्या किया है, ये आपका ABC और D है। ओके, ABC और D है। सो ए फॉर ABC, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ DCBA, सॉरी ABCD। तो ABCD अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको चाहिए 110 एक बार आपका D है 1 और दूसरे बार आपका D है 0, लेकिन ये ABC आपका 110 ही रहेगा। तो ये केस और ये केस, ओके, ये वाला केस और ये वाला केस, ओके, बिकॉज 110 करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट होने वाला है। लेकिन अभी मुझे देखना है कि जब D1 है और जब D0 है तो आउटपुट Y क्या है, तो आउटपुट Y क्या है। ओके, तो 11 तो ये कॉम्बिनेशन मुझे देखना है और ये कॉम्बिनेशन देखना है। तो ये कॉम्बिनेशन 1110 वो कॉम्बिनेशन देखो, 1110 1110
या फिर मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने ABCD किया है, ओके। तो अगर मुझे ये फॉर्म में लिखना है ABCD, तो वो क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, B मेरा 1 रहेगा, C मेरा 1 रहेगा और D मेरा 1 रहेगा। तो ABCD 0 1 1 1 0 1 1 1 ये मुझे देखना है, 0 1 1 1। तो 0 1 1 1 देखो कहाँ पे, 0 1 1 1 0 1 1 1। सो योर 0 1 1 1 इज हियर, ये वाला, ये वाला, ये वाला 0 1 1 1, ये वाला। अब 0 1 1 में आउटपुट देखो 1 है, ये देखो आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है। तो मुझे क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक देखो क्या करना है। तो 0 1 1 1 में, ओके। तो एक बात तो पता चली कि ABC जब 0 1 1 है तो मेरा I6 सिलेक्ट हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन में मेरा आउटपुट 1 आता है। तो देखो आ रहा है क्या आपका आपका D, आपका D इज 1, आपका D इज 1। तो ये आपका जो D है वो 1 है, सपोज ये D आपका 1 है। आपके C में आपका ये 0 जा रहा है, ओके। तो आउटपुट में 0 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए? यस, आउटपुट में क्या आना चाहिए एज पर द प्रॉब्लम? अभी आपका लेक्चर है ना? यस सर, यस सर, एंटी का लेक्चर। एंटी Yes, का sir. लेक्चर है। ओके ओके ओके, ठीक है। एक काम करो, द लास्ट डिजाइन यू डू बाय योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज I will just explain you in the next lecture, okay? So you can join the Chintan sir's lecture, please join। इसका अटेंडेंस मैं बाद में लेता हूँ, ओके। प्लीज join the Chintan sir's lecture। थैंक यू सर। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. आज दूसरे कहाँ पे? हाँ नहीं, मैं वो पैकिंग जरा सा बाकी था, वो कर रहा था, मेरा लेक्चर अभी खत्म हुआ। तू कहाँ पे? ब्लाउज बराबर नहीं आया? हाँ, हो गया। ठीक है ठीक है, हाँ क्या, ठीक है चले।
हॅलो. हा हा बोलो. हा लेक्चर आता लेक्चर संपलं माझं. हा 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 तो नाही घेऊन जायचं. हो का, म्हणजे मी जो फोटो पाठवला तो नाही का मग तो? अच्छा ठीक आहे. जी ज्याची हलते ती घ्यायची का? अच्छा तर तो नाही घ्यायचा. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. ओके. हो. ट्रेन मिली की बराबर? ठीक आहे ओके. ते नाही अजून ते चार्ट प्रिपेअर व्हायचा ना. हा 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 हो का. हो का. हो का. ठीक आहे ठीक आहे. चला चला. हो हो. हाय. हॅलो. हाय. निशाचा फोन नाही फोन नाही लागला. का काय आला? हा हा कोणाचा फोन आला? कोणाचा फोन आला? संतोषला? अच्छा अच्छा हा 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 हा
बरं बरं बरं. अच्छा अच्छा अच्छा. वापस येणार बोलले का त्यांनी? बरं हा. पण त्या बरं ठीक आहे तर बोलूचं पण काय ठरलं काय माहिती. बर 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 असं काहीतरी हा बर हा 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 हो अच्छा असं म्हणाय. हो हो ठीक आहे बोलतो तसं है ना. चालेल हो निषेध आहे. निषेधशी डायरेक्ट बोलू ना. हो चालेल चालेल. हो 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 ठीक आहे चालेल. Yes, now see in the last design. In the last design we have to do one little bit of a modification, that in this table you what you have to do, you have to just change this variable as a, then this will be b. Let me erase this part. What change you have to do, you have to make this as a, then this is as b, and this as c, and this as d. Okay, now a b c d this change you have to do, and the same thing that d will be treated as a control line and abc will be treated as a select line. And now you just cross check. Now you have to just cross check. Okay, how do you cross check now? If I take in this example, if I am taking I0, how this I0 will be selected? When you have ABC as 0 0 0. So if you have ABC as 0 0 0, now see here you have 0 0 0 here also, and you have 0 0 0 here also. Where? Here. ओनली डी यहाँ पे 0 है और डी यहाँ पे 1 है. सो यू हैव टू सी, जब डी 0 है तो व्हाट इज एन आउटपुट, when d is 1 what is an output. So in both the cases the output are 0. In both the cases your output is 0. In both the cases your output is 0. So that's why ये जो आपने यहाँ पे जो ये बनाया है,
टेबल बना है, आउटपुट ये देखो ये 0, that is the meaning that output is 0. Similarly, you check for I1. How do you select I1? For 0, 0, 1. Similarly, go to the table 0, 0, 1. So where do you see 0, 0, 1? You can see 0, 0, 1 here. You can see 0, 0, 1 here. Also your 0, 0, 1 is here. ये देखो यहाँ पे भी है. Only when D is equals to 0, you see the output as 0. And when your D is equals to 1, you will see where is 0, 0, 1? Yes. When your D is equals to 0, here also your output as 0. So in both the cases, your output is 0. So can you check here? Your output is this is the output. So that should be connected to the logic 0. Similarly, if you check here for I2, how do you select I2? It will be for 0, 1, 0. 0, 1, 0. So where do you see 0, 1, 0? देखो 0, 1, 0 आपको यहाँ पे देखने को मिला. ये देखो यहाँ पे 0, 1, 0. एक 0, 1, 0 यहाँ पे और दूसरा 0, 1, 0 देखो यहाँ पे जब D 0, 1, 0 पे जब D 0 है तो आउटपुट आपका 1 है, और ये 0, 1, 0 पे आउटपुट जब आपका D 1 है तो आउटपुट भी आपका 1 ही है. तो इन रेस्पेक्टिव ऑफ योर D योर आउटपुट इज 1. तो वो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, अब वही मैं अगर ये यही बताता हूँ D बार कैसे आया. तो चेक फॉर I6. आपका I6 कब सिलेक्ट होगा? when your ABC is 1, 1, 0. When your ABC is 1, 1, 0. So where is your 1, 1, 0? If you see carefully, देखो आपका 1, 1, 0 यहाँ पे, ये देखो ये वाला 1, 1, 0. और दूसरा 1, 1, 0 कहाँ पे है? वो भी ये देखो सेकंड टास्क में 1, 1, 0, 1, 1, 0. अब यहाँ पे देखो 1, 1, 0 और यहाँ पे यानी 6 और 14 डेसिमल नंबर. अब ये दो केस में देखो, जब आपका D 0 है, जब आपका D 0 है तो आउटपुट में 1 है, और जब आपका D 1 है आउटपुट में आपका ये देखो 0 है, ये नीचे वाला 0 है. अब ये टेबल में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इफ यू सी केयरफुली, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब D आपका 0 है आउटपुट में 1 है, और जब आपका D 1 है आउटपुट में 0, दैट मीन्स योर आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंटिंग. 0 का 1, 1 का 0. तो वो आपका कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखो D बार. ओके, so similarly you can cross check for 1, D1, D1. okay, you have to do what? I0 सिलेक्ट करने के लिए आपको ABC का वैल्यू देखना है, और बाद में D का देखना है कि D जब है तो आउटपुट में क्या है. ओके, वैसे I1 के लिए भी, वैसे I2 के लिए भी, similarly for I3, for I4, for I5, I6 and I7. For example, again for I5, how do you select I5? By using ABC. So for that your ABC should be what? It should be 1, 0, 1. And for D case, तो ABC आपका 1, 0, 1 यहाँ पे भी है. एक केस में आपका D 0 रहेगा, दूसरे केस में आपका 1 रहेगा. तो वो केस में आपको देखना है कि जब D 0 है तो आउटपुट में क्या है, और जब D 1 है तो आउटपुट में क्या है. तो एज पर ये जो आपने जो बनाया, इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ फॉर 1, 0, 1 दैट इज 5 फॉर दिस. सो इट शुड बी D. इसका मतलब है आपका जब D 0 है तो आउटपुट में भी 0 है, आपका D अगर 1 है तो आउटपुट में भी 1 है, एज पर दिस. एंड यू विल सी इट इज फॉलोइंग द सेम थिंग. Okay, so please go through this. If you have any questions or any query, you ask me in the next lecture. Okay, thank you.